So we now start the article of inkjet printing, and that is the application of a charge when placed in an electric field, and then it accordingly it experiences an electrostatic force. So I just draw the diagram from where we can understand that how the principle of inkjet printing and how the inkjet printing actually takes place. So these are the actually plate where a uniform electric field being applied. This is the deflecting place. And a magnetic field, a uniform magnetic field is actually being applied, and it is having a direction of E, which is shown. And there is a input signal generator which generates the input signals or the electrons. You can say that is just like this diagram is actually shown that how the input signals are being generated. So I can say that it is input signal. So the drops are being shot from the generator, because in Millikan oil droplet method we use the drops. So we also have a drop, a source of drops. That is a drop source. I can say that from here it's a drop generator. It's just like you can say that the electron gun, where the electron is being generated from here. The droplets will be generated, and those droplets will actually move according to the input signal which is being provided in this way. It's just like the same as that we discussed in our experimental I think setup, how the compression and rarefaction, they generate the electrical signal, right? So in the same situation, if the signal is being is given to the droplets, then how the droplets will move, right? In case of electric current, the electrons will move accordingly as per the signal given to the charged particles, and over here the particles will be the droplets, and the signal will be given to them, and these particles will move as per the signal. If there is a maximum, you can say that if an analog signal is being given to this generator droplets, then accordingly there will be analog movement of the droplets, and if it is a direct, then accordingly it will have a specific energy, and then accordingly the droplets will move in with specific direction, right? So ये just जो है ना वो इनपुट सिग्नल की बुनियाद पे हमारे जो पार्टिकल्स हैं, अब जिन्होंने चेंज होना है, जिन्होंने की स्पीड चेंज होनी है, वो ड्रॉपलेट्स हैं. ये ड्रॉप जनरेटर की गन है जिसने ड्रॉप्स को जनरेट करना है. तो जैसे ही सिग्नल दिया जाता है तो हमारे पास ये जो बीम है इस तरह जो है ना वो मूव करती करती इस तरह, ये जो है ना वो ऐसे आती है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको डिफ्लेक्ट कर देना है, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक चार्ज है. तो जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आएंगे तो ये इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ जो है ना वो डिफ्लेक्ट कर देगा. अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है ना वो अगर होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो डिफ्लेक्शन अपोजिट चली जाएगी, अपवर्ड के केस में और डाउनवर्ड के केस में.
तो इस सिचुएशन में ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का सिग्नल है, ये जो हमारे पास ड्रॉपलेट्स की जो एनर्जी है, जो इनपुट सिग्नल दे रहा है, उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंगली इनकी डिफ्लेक्शन होगी। जिसकी डिफ्लेक्शन जितनी ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो है ना वो जो एनर्जी कम है तो डिफ्लेक्शन कम, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो यूनिफॉर्मली इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द एनर्जी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन दीज चार्ज ड्रॉपलेट्स एंड दोज ड्रॉपलेट्स एक्चुअली विल डिफ्लेक्टेड एट सर्टेन एंगल। ये जो है ना वो बिल्कुल उसी तरह का जो है ना वो प्रिंसिपल बन जाता है जिस तरह का हमने जो है ना वो लिया था फोटोग्राफिक का जो फिल्म होती है हमारे पास टीवी में। उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बीम जो ना मूव करती है तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी एनर्जीज डिफरेंट होती हैं और वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जब डिफ्लेक्ट करते हैं तो डिफरेंट एनर्जीज इंपार्ट करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म को और डिफरेंट कलर्स जो है ना वहाँ से एमिट होते हैं। तो ये हमारे जो कलर्ड इमेज है उसके पीछे जो ट्यूब लगी होती है टेलीविजन की, खासतौर पर अगर आपने पुराने टेलीविजन देखे हों तो उसमें जो है ना वो फंडामेंटल यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है, जिसमें जो है ना वो चार्ज जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको पास करवाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरने के बाद वो जो है ना वो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं और जितनी एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लगती है और उनकी जो है ना वो डिफ्लेक्शन हो जाती है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उनके डिफ्लेक्शन एंगल जो है ना डिफ्लेक्शन एंगल जो है ना वो डिफरेंट होंगे और जब वो डिफरेंट एनर्जीज के साथ जो है ना वो यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे फोटोग्राफिक फिल्म को तो यहाँ पे डिफरेंट कलर के जो है ना वो डिफरेंट कलर्स जो है ना वो एमिट होंगे और जिस तरह का इमेज होता है उसी तरह का इमेज जो है ना यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में बन जाता है। ये हम लोगों ने जो है ना वो डिस्कस किया था कि जैसे हमारी आवाज़ का इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर जो है ना वो मैग्नेटिक डोमेन्स की फॉर्म में अलाइन होता है, मैग्नेटिक डोमेन से फिर जो है ना वो सिग्नल जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन से और उसके अकॉर्डिंगली हमारी आवाज़ फिर हम लोग सुन सकते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि हम लोगों ने जो भी अपना जो सिग्नल्स हैं, जो भी पिक्चर है या आवाज़ है, जो कुछ भी है, अगर हमने उसको जो है ना वो किसी प्रोसेस के थ्रू गुजार के किसी एक डिवाइस के थ्रू सुनना है या देखना है तो हमें उसके सिग्नल जनरेट करके उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजार के तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी डिफ्लेक्शन को यूटिलाइज करते हुए हम लोग वो इमेजेस वो चीज़ें जो है ना वो दोबारा देख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर आपने कंप्यूटर से अपनी आवाज़ सुननी है तो आपने एनालॉग आवाज़ जो कि एनालॉग है, कंप्यूटर हमारी आवाज़ को नहीं सुनता, तो उसके लिए डिजिटल जो है ना वो चूँकि डिजिट्स की बात बाइनरी कोड की बात सुनता है, वो बात जो है ना वो प्रोसेस करता है सिग्नल को 0101 को। सो हमारी आवाज़ जो एनालॉग में है वो पहले कन्वर्ट होगी 01 के सिग्नल में। तो इसीलिए जो एनालॉग का है कंप्यूटर वाले, चूँकि आप लोग को आइडिया होगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं तो जो हमारा प्रोसेसर है उसमें पहले जो है जहाँ से वो इनपुट ले रहा है, इनपुट के आगे जो है ना एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो वो एनालॉग की जो भी सिग्नल होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब 0101 में। तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके फिर उसके बाद चूंकि डिजिटल हम लोग नहीं सुन सकते तो हम लोग आउटपुट के ऊपर जहाँ पे मोनीटर है, मोनीटर के आउटपुट आने से पहले डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा देते हैं जिसने डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देना है। तो वही आवाज़ हम लोग कंप्यूटर से सुन सकते हैं, वही चीज़ जो है ना वो कंप्यूटर पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने कंप्यूटर को यूटिलाइज करना है तो हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होने चाहिए, तभी हम लोग कंप्यूटर को जो है ना वो यूटिलाइज करके तो उससे इंफॉर्मेशन वो इमेज जो है ना वो ले सकते हैं। यही सिचुएशन यहाँ पे है कि अगर हम लोगों ने जो ना वो प्रिंटिंग करनी है, वही पिक्चर लेनी है, वही चीज़ जो है ना वो हमने प्रिंट करनी है जो हम लोग चाह रहे हैं, तो हमने जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं या वो उनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारना है और उसी तरह का सिग्नल उनको जनरेट करके देना है जिस तरह का सिग्नल जो है ना वो इनपुट के ऊपर जो है ना हमारे उस मटेरियल का है। तो वो मटेरियल के जो इनपुट सिग्नल जनरेट जो करेगा वो सिग्नल जो है ना ड्रॉपलेट्स की एनर्जी को चेंज कर देगा। वो एनर्जी जो है ना वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वेरिएशन के साथ आएगी तो वो वेरिएशन, उसी वेरिएशन के साथ वो पार्टिकल जो है ना वो डिफरेंट पोजिशन के ऊपर जाके स्टिक हो जाएंगे। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का चार्ज पार्टिकल के साथ और ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ, ये हमें जो है ना वो इंकजेट प्रिंटिंग की एक एप्लीकेशन जो है ना वो उसमें ले जाता है, जिसमें हम लोग उस बेसिक आइडिया को यूटिलाइज करके हम लोग जो है ना वो प्रिंटिंग कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें आता है वो है इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन का ना, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन।
इसको हम लोग जो है ना वो स्पार्किंग भी कहते हैं, कि स्पार्क होना ना। तो प्राइमरीली इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर एयर में कोई चीज़ मौजूद है तो उसके में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सीड कर जाए तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है ना वो आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, और सेमीकंडक्टर में आपने जेनर डायोड का पढ़ा होगा। तो जेनर डायोड का उसका जेनर ब्रेकडाउन होता है। मतलब ये है कि अगर वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक जो है ना वो वोल्टेज के ऊपर मूव करते हैं, अगर हम लोग वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दें तो वो बहुत जो बॉन्ड्स हैं एक मटेरियल के अंदर वो ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ही वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो उस सिचुएशन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ जब मूव करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट से स्पार्क प्रोड्यूस होगा। और वो चूंकि उस मटेरियल का ब्रेकडाउन हो चुका है, वो उसके बॉन्ड्स जो है ना वो ब्रेक हो चुके हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में आ गया है। तो यहाँ पे जो है ना वो अगर चार्ज पार्टिकल जो है ना वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतना ज़्यादा कर दिया जाए जिसमें से वो पास कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत स्ट्रांग हो तो उसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके बॉन्ड्स जो है ना वो ब्रेक हो जाएंगे। जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्टिव जो है ना वो चार्ज कैरियर्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिससे उसके में स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे घरों में अगर जो है ना खुदा ना खास्ता अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो कर गया है, रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है। तो रेजिस्टेंस अगर नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा अगर करंट फ्लो कर देता है तो उसमें स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और मटेरियल जो कनेक्शन होता है वो जल जाता है। इसका मतलब क्या है कि मटेरियल का बॉन्डिंग टूट गई है। जब मटेरियल की बॉन्डिंग टूटी है तो बहुत ज़्यादा कैरियर्स जो है ना वो अवेलेबल हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। अब वो जब मूव करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हीटिंग इफेक्ट से उसके जो है ना वो हीट प्रोड्यूस होगी और जो है ना स्पार्क प्रोड्यूस होगा, और उसकी वजह से वो मटेरियल जो है ना वो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये प्राइमरीली जो है ना वो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा कर दें कि वो उसके बॉन्डिंग को, मटेरियल की बॉन्डिंग को तोड़ दे, जो मटेरियल उसमें से आप ड्रॉपलेट उसके अंदर से मूव करवा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वो स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो पहले इंसुलेटिंग जो है ना वो होता है वो बाद में कंडक्टिंग मीडियम बन जाता है। यही सिचुएशन है कि अगर आप देखें नॉर्मली जब लाइटनिंग का इफेक्ट होता है, जब बादल आते हैं और बिजली वगैरह का, तो उसमें जो है ना वो हमारी जो एयर है उसमें चूंकि लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो ब्रेक कर देता है एयर पार्टिकल्स को। और जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में उनके कोलिजनल इफेक्ट से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और वो स्पार्क जो है ना वो आगे फिर फैलता हुआ हमें नज़र आता है। तो ये इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है, जो मेन आइडिया है वो यही है कि जब भी आपने चार्ज पार्टिकल जो है ना वो इमेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो उसमें उस मटेरियल का जिसका चार्ज पार्टिकल है वो मटेरियल जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसका जो है ना मेन पॉइंट्स को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर एक्सीड्स a certain critical value, the air undergoes a electric breakdown, a process whereby the field actually removes electrons from the atoms in the air। मतलब वो मटेरियल जो है ना वो उससे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो निकल जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी कहा। तो जैसे ही वो फ्री हो जाते हैं तो वो मूवमेंट के लिए जो है ना वो मूव करते हैं, हीटिंग इफेक्ट से स्पार्क प्रोड्यूस कर देते हैं, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है, हमने जब भी किसी भी जो है ना वो चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करवाना है तो हमने वो एक जो है ना वो ये कंडीशन को अपने जहन में रखना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करें जो उसकी क्रिटिकल वैल्यू से नीचे नीचे हो, मतलब उसका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ना हो। अगर वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया उसका तो वो फ्री कैरियर जो है ना उसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, और हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा करंट जो है ना फ्लो कर जाएगा, स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, उसमें आग लगने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, so I just write down the main point over here that if the magnitude of an electric field exceeds a certain critical value, EC, that is the electric field critical value, air undergoes electric breakdown.
and this one is actually the process in which the electrons they are being removed from the air atoms. From एयर एटम्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो हमारे एयर एटम से उसने रिमूव कर दिए तो इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। मतलब एटम्स जो है ना उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो जब भी हम लोगों ने इंटरेक्शन जो है ना वो स्टडी करना हो तो इसमें हमारे पास कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है और कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम लोग अनकंट्रोल्ड मूवमेंट या अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने जो है ना वो स्पेसिफिक जो डिज़ायर्ड वैल्यू है या डिज़ायर्ड आउटपुट है वो नहीं ले सकते। तो इसलिए जो ना वो फंडामेंटल, मैंने जब अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें जब भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी की बात होती है, कंट्रोल्ड मूवमेंट की बात होती है, तो वो हमारे पास एक डिज़ायर्ड आउटपुट के हवाले से है। तो उसमें हम लोग हमारे पैरामीटर्स जो है ना वो अपने अपने हाथ में होते हैं कि हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अगर कोई चीज़ हमारे कंट्रोल से निकल जाए, ये किसी भी सेक्टर में जो है ना वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में की मिसाल ले लें, तो उसमें भी अगर कोई भी चीज़ हमारे हाथ में कंट्रोल ना रहे, उसका वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो वो कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकती। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये एनर्जी भी हो सकती है। अगर एनर्जी अनकंट्रोल है तो आप इसको आप कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट जो है ना वो पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं, डिफरेंट जो है ना वो एस्पेक्ट्स भी होते हैं, अगर वो हमारे कंट्रोल में ना रहें तो फिर जो चीज़ें हैं वो कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज के लिए यूज़ नहीं हो सकती। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का अगर स्टीयरिंग है तो गाड़ी अगर कंट्रोल में ना हो तो फिर जो है ना वो तबाही के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर वो कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज के लिए यूज़ नहीं हो सकती। सो यहाँ पे भी जो है ना प्राइमरली जो हमारा मेन आइडिया है वो यही है कि अगर हमने कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज के लिए, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए और डिज़ायर्ड आउटपुट लेने के लिए इस इंटरेक्शन को यूज़ करना है, तो हमें कंट्रोल्ड मूवमेंट चाहिए और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंट्रोल्ड एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर चाहिए, जिससे हम लोग जो है ना वो उसको कंट्रोल करके उसको इंटरेक्ट करवा के हम अपने जो है ना स्पेसिफिक एप्लीकेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो था ये पॉइंट चार्ज अगर जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो वो पॉइंट चार्ज या एयर ड्रॉपलेट या ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट भी हो सकता है, उसको हम लोग यूज़ करते हुए, उसकी कंट्रोल मूवमेंट को यूज़ करते हुए हम लोग जो है ना वो एक कौन सी एप्लीकेशन में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा जो है ना वो यहाँ पे आर्टिकल है वो है डाईपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। And this one is 22-9 आर्टिकल, चैप्टर नंबर 22 का ये आर्टिकल है डाईपोल। जैसे हमने डाईपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ना वो पढ़ा था कि उसके ऊपर जो है ना वो चार्ज कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। जैसे ये अगर आपको याद हो तो हमने ये आर्टिकल पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू आती है जब भी जो है ना वो डाईपोल हम लोग कंसीडर करें और उस डाईपोल के जो है ना अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से वो हम लोग ऑलरेडी जो है ना वो पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो डाईपोल है उसमें जो है ना वो वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो हम लोग कंसीडर करेंगे कि जैसे अगर हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें जो है ना वो दो एटम्स जो है ना वो पानी उसके होते हैं हाइड्रोजन के, और एक जो है ना वो ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो ये जो है ना वो मैं जस्ट बना देता हूँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए। ये दो जो है ना वो हाइड्रोजन के और एक जो है वो ऑक्सीजन का है। तो दिस वन इज द ऑक्सीजन एटम and these two are actually the hydrogen atoms. Okay, so ये जो है ना वो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है।
क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है ना ये डाईपोल में चेंज हो जाता है, इसमें चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है तो ये इलेक्ट्रिक डाईपोल जो है ना वो बन जाता है, पॉजिटिव अलहदा हो जाता है और नेगेटिव इसमें अलहदा हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए वाटर मॉलिक्यूल इज ए डाईपोल। ए water molecule H2O is a dipole, is an electric dipole. Okay, so if we actually consider the figure, and this one is the actually figure I just want to emphasize on. See over here, this is the hydrogen atom, this one, these two are the hydrogen, this is a positive side and this is oxygen, and then accordingly it's a negative side. Then these actually two atoms are actually interacted or connected with the oxygen or bonded with the oxygen at an angle of 105 degree. So in that situation the electric dipole moment, the value of P is directed upward. So this figure actually shows that the molecule of H2O showing the three nuclei represented by the dots, this one, and this one, and the region in which the electrons can be located. The electric dipole moment P points from the negative oxygen side to the positive hydrogen side of the molecule, from negative towards the positive, just like the electric field. The electric field भी हमेशा जो है ना वो जो हम लोग डाइपोल मोमेंट की जो है ना वो बात करते हैं पहले भी, तो उसमें भी हम लोग नेगेटिव से कंसीडर करते हैं पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, सो ये जो है ना डायग्राम इसके अकॉर्डिंगली जो है ना वाटर मॉलिक्यूल जो है ना हमें दिखाया, ये मैंने जस्ट उसका रफ सा जो है ना वो एक स्केच यहाँ पे बना दिया है ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहे कि ये जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है ना वो ये डायरेक्टेड है, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने जो है ना वो एक डाइपोल वाटर मॉलिक्यूल चूँकि डाइपोल है तो इसको जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखें तो उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है ना वो उसका बिहेवियर जो है ना वो चेक करना है। सो इसमें जो है ना वो थोड़ा सा इसकी जो है ना वो फंडामेंटल बताई गई है कि इसके जो है ना वो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स जो है ना वो इसमें किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, उनका जो है ना वो बिहेवियर क्या है। लेकिन प्राइमरीली हम लोग जो फोकस करेंगे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर करेंगे। अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लें, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो इसका जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो रिजल्ट वो क्या होगा। तो इसका जो है ना मैं जस्ट एक ड्रॉ कर देता हूँ, जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की गई है ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो है ना उसकी डिवेलप हो सके। सो ये लाइंस जो हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं विच इज़ हैविंग ए स्पेसिफिक डायरेक्शन लाइक दिस। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने जो है ना वो एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल मीन ये जो है ना वो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे जो है ना वो लिखने लगा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों जो है ना आपस में एक स्पेसिफिक जो है ना वो एक्सिस के साथ इस तरह जो है ना वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये एक डाइपोल जो है ना वो बन रहा है, और इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल इज एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज d, एंड देयर इज अ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास। आप ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास के बारे में जानते हैं, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है। एंड इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द फील्ड लाइंस, एंड द वैल्यू ऑफ p इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इस डायरेक्शन में। तो जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव, एंड दिस वन इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो हमने शो की हुई है इस डायरेक्शन में।
राइट। सो अब यहाँ पे जो है ना वो हम लोग इसको देखेंगे कि पॉजिटिव जो है ना वो चार्ज हमने कहा हुआ है कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी सेम डायरेक्शन में आ जाएगी। नेगेटिव चार्ज जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे जो ना पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है दैट इज डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यहाँ पे जो फोर्स लग रही है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो कि सेम मैग्नीट्यूड की है बट अपोजिट डायरेक्शन की है, तो इस सिचुएशन में जो नेट फोर्स है इसके ऊपर जो है ना वो डाइपोल के ऊपर वो जीरो होगी, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं करता, वो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही रहता है। तो ये इस सिचुएशन में इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये मूव नहीं करेगा, ये अपनी ही जगह पे रहेगा। लेकिन ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर जो फोर्सेस हैं ये चूंकि इस डायरेक्शन में लग रही हैं तो ये इनको अलाइन करेंगी सीधा करके, ऐसे ना स्ट्रेट डायरेक्शन में इसको जो है ना वो मूव करवाएंगी। लेकिन इनर्शिया की वजह से ये जो है ना वो इन फोर्सेस के ये टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगी। जैसे ही ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी तो ये सेंटर ऑफ मास तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों क्या करेंगे, मूव करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। तो इस सिचुएशन में अगर एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसका मतलब क्या है कि उसने ऑसिलेट करना है, उसने मूव करना है, उसकी मूवमेंट जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो मूवमेंट जो है ना वो टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस होगी। और टॉर्क हमने जो है ना वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये जो हमारे पास फोर्सेस हैं ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, और ये टॉर्क दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसको हम लोग आर एफ साइन थीटा बी जो है ना वो कहते रहे हैं। अब यहाँ पे दो किस्म के जो है ना वो टॉर्क्स होंगे, एक टॉर्क होगा पॉजिटिव फोर्स की तरफ से और एक टॉर्क होगा नेगेटिव फोर्स की तरफ से। तो ये सेंटर ऑफ मास जो है इसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास हम ये जो ना वो कंडीशन लगा देते हैं, तो सेंटर ऑफ मास इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x from one charge and d minus x from other charge। मतलब ये सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे नहीं है। अगर सेंटर में होता तो ये d/2 इधर होता, d/2 इस साइड पे होता, लेकिन हम लोग जो ना वो जनरल कंसिडरेशन जो ना वो लेते हैं कि जिसमें एक तरफ से x है और बाकी टोटल चूंकि d है तो दूसरी तरफ का जो ना वो d माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो टोटल टॉर्क है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इन दोनों का सम है, इस फोर्स का जो पॉजिटिव के ऊपर लग रही है और ये दूसरी फोर्स जो है वो नेगेटिव के ऊपर लग रही है। तो इसमें हम लोग जो है ना वो भी कंसिडर करेंगे द टोटल टॉर्क acting on dipole is tau is equal to f x sin theta plus f into d minus x sin theta। एक जो है ना वो पॉजिटिव फोर्स की वजह से और एक नेगेटिव फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे जो है ना अगर इसको जो है ना वो हम लोग सिंप्लीफाई करें तो एक पॉजिटिव एफ एक्स साइन थीटा है और यहाँ पे नेगेटिव एफ एक्स साइन थीटा। अगर ये कर जाएंगी तो हमारे पास जो टॉर्क रहेगा दैट इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग जो है ना वो एफ की फोर्स की वैल्यू पुट करें क्यू ई, एफ इज एक्चुअली इक्वल टू क्यू ई, राइट। सो इस सिचुएशन में हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा क्यू ई इंटू डी साइन थीटा, ठीक है। तो क्यू इंटू डी ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो हम लोग इसको कहेंगे पी ई साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास ये जो P है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल टू Q इंटू डी, राइट। सो ये जो टॉर्क की वैल्यू आई है, ये टॉर्क की वैल्यू हमें जो है ना वो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, राइट। सो ये जो हमारे पास टॉर्क आया है ये टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है उस डाइपोल को मूव करवाने के लिए,
ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है, टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये डाइपोल को इसके अंदर मूव करवाता है। और इसी तरह हम लोग जो है ना वो टॉर्क के साथ एनर्जी ऑफ द डाइपोल जो है ना वो भी फाइंड कर सकते हैं कि जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि potential is equal to potential energy is equal to minus W, and that is equal to minus tau into d theta, the work done by a variable force। आई थिंक आपने मैकेनिक्स में ये पढ़ा होगा, और मैं इसकी जो है ना वो डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये जो है ना उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू माइनस पी ई कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि साइन थीटा का जो ना वो डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस थीटा, तो माइनस पी ई कॉस थीटा। और इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू पी डॉट ई। तो इस तरह हम लोग जो है ना वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं एम्फेसाइज करूँगा इस एक्चुअली टॉर्क को। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये प्राइमरीली ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे जो माइक्रोवेव ओवन्स हैं तो उसमें हम लोग जो है ना वो नॉर्मली चीज़ें गर्म भी करते हैं, चीज़ों को पकाते भी हैं। तो माइक्रोवेव ओवन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो उसका, उसमें ये है कि अगर ऐसी चीज़ उसमें गर्म हो सकती है जिसमें पानी का कंटेंट मौजूद हो, वाटर कंटेंट मौजूद हो। अगर वाटर कंटेंट उसमें मौजूद नहीं है तो वो चीज़ ना तो पक सकती है माइक्रोवेव ओवन में, और ना ही उसमें जो है ना वो उसको गर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि माइक्रोवेव ओवन जो है ना वो पानी को उसने मूव करवाना है, माइक्रोवेव्स ने जो है ना वो पानी को मूव करवाना है, और पानी ने जो है ना वो इसको अगर होगा तो हीट अप होगा। तो इसमें बेसिक आइडिया किस चीज़ का है, क्योंकि पानी जो है ना उसके डाइपोल्स बन जाते हैं, और माइक्रोवेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट जब होता है तो वो पानी के मॉलिक्यूल जो है ना वो उसके डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी मूवमेंट जो है ना वो होती रहती है। और वो मूवमेंट जो है ना वो जाहिर बात है, अगर एक पार्टिकल्स मूव कर रहा है कॉन्टिन्यूसली तो वो कोलिजनल इफेक्ट, उसमें हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, और वो हीटिंग इफेक्ट जो है ना वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है फिर जो चीज़ों के गर्म करने में और चीज़ों के पकने में, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ड्यूरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और स्ट्रेंथ ऑफ द जो ना टॉर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जो है ना वो तेज़ी के साथ वो मूव कर रहा है, कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और कितनी जल्दी जो है ना वो चीज़ें हीट अप होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाईपोल अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो डाईपोल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ हो रहा है माइक्रोवेव ओवन में, वाटर मॉलिक्यूल का खास तौर पर, चूँकि ये बेसिक आइडिया जो है ना वो माइक्रोवेव में यूज़ हो रहा है। अगर उसमें किसी भी मटेरियल अगर है तो उसमें अगर वाटर कंटेंट नहीं है तो वो उसको हम लोग माइक्रोवेव ओवन में यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ जो ना हमारे पास ना आती, डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये अगर ना होता तो फिर आज हमारा जो माइक्रोवेव ओवन्स हैं उनका कॉन्सेप्ट, उनका जो है ना वो एप्लीकेशन वो ना होती। तो यहाँ पे ये आइडिया जो है ना हम लोग बेसिकली इसको यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि इसने टॉर्क प्रोड्यूस करना है डाइपोल में, ऐसे मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल बन जाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जो कि डाइपोल बनता है, तो इसमें जो है ना वो अगर किसी भी चीज़ में, जैसे मैं फिर जो है ना इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि किसी भी चीज़ में अगर वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो अगर नहीं होगा तो वो चीज़ माइक्रोवेव ओवन में हीट अप नहीं हो सकती, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो यही है कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी चीज़ रखी हुई है उसमें अगर पानी का कंटेंट मौजूद है तो पानी का जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, दैट विल बी एक्चुअली एक्टिंग एज ए डाइपोल, और वो डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो एग्जर्ट होगी, और उसको वो जो है ना वो अलाइन करने की कोशिश करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन वो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो रोटेशनल इफेक्ट में जो है ना वो टर्निंग इफेक्ट में जो है ना वो आ जाएगी, और उसके मुसलसल जो है ना वो मूव करने की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और वो हीटिंग जो है ना वो उस जो मटीरियल जिसमें वाटर कंटेंट मौजूद है उसको हीट अप करेगी, या अगर उसको जो है ना कुकिंग करनी है तो कुकिंग के अकॉर्डिंगली भी उसको यूज किया जा सकता है, बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड ऑन द मटेरियल। तो ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड का और पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेसिकली हमें जो है ना वो आजकल की एप्लीकेशंस जो है ना वो उनमें हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को, इन आइडियाज़ को यूटिलाइज करते हैं। तो इस बेस पे जो है ना वो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ये हम प्राइमरली इन बेसिक इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इसको क्वान्टिफाई भी कर सकते हैं, और इसको हम लोग आगे फिर जो है ना वो वैल्यू भी बता सकते हैं। जैसे आपके जो है ना वो जैसे माइक्रोवेव ओवन है तो उसमें लिखा होता है कि जो है ना वो हमने जो है ना वो
हीटिंग करनी है तो कितने ड्यूरेशन के लिए, किस जो है ना वो ऑब्जेक्ट को रखना है, डीफ्रोस्ट करना है, आपने जो है ना वो कुकिंग करनी है, आपने जो है ना जस्ट उसमें जो है ना वो किसी चीज़ को गर्म करना है, तो हर एक का टाइम ड्यूरेशन होता है। और रेसिपीज़ में बाकायदा लिखा होता है कि ओवन को जो है ना वो आपने किस कंडीशंस में, किन जो है ना वैल्यूज़ के ऊपर कितनी देर तक जो है ना वो आपने हीट अप करना है। तो ये सारी की सारी जो पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं, ये इंजीनियर जो है ना ये पीछे ये पैरामीटर्स टॉर्क के, इलेक्ट्रिक फील्ड के और उस चीज़ के अंदर जो है ना जितनी उसकी हीट एनर्जी चाहिए होती है पकने के लिए, वो सारे के सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके फिर उसका ड्यूरेशन जो है ना वो कैलिब्रेट किया होता है और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है ना वो माइक्रोवेव फिर आगे हम लोग अपनी जो रिक्वायर्ड आउटपुट है उससे लेते हैं। तो ये तमाम जो डिवाइसेस चल रही होती हैं जिसका हमने अपने जो है ना वो इसमें लेक्चर में डिस्कस किया है, तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं और जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज ऑब्जेक्ट्स का जो है ना आपस में इंटरेक्शन होता है और इस इंटरेक्शन को कंट्रोल करके हम लोग जो है ना वो अपने बेनिफिट्स के लिए या कम्युनिटी की जो है ना वो बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाए, चार्ज जो है ना वो उसका इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाए कि वो हमारे कंट्रोल में ना रहे, तो फिर हम लोग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा या स्पार्किंग प्रोड्यूस हो जाएगी या खुदा न खासा धमाका हो सकता है। ठीक है, तो ये जितनी देर तक चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी उतनी देर तक हम लोग जो है ना वो इनको अपने कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये अनकंट्रोल जो है ना वो हो जाएंगी, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और वो कैरियर्स जो हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो उस सिचुएशन में उनको कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए फिर यूज़ करना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो इस जो है ना वो आर्टिकल के साथ ही आपका जो है ना चैप्टर नंबर 22 जो है ना उसके जो मेन आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़ने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद जो है ना वो हम लोग जो नेक्स्ट लेवल है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, दैट इज़ द गॉसेस लॉ एंड हाउ टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड is being actually calculated utilizing the basic concepts and basic limitation of Gauss's law in electrostatics। और उसकी applications जो है ना हम लोग फिर अभी जो है ना वो नेक्स्ट आर्टिकल में अभी डिस्कस करेंगे।